We'll turn to the book of 1 Peter chapter 5, पहला पतरस 5वां अध्याय में जाएंगे, verse 5 to 8, 5 to 7. 5 से 8 वचन। You younger men, likewise, be subject to your elders, and all of you clothe yourself with humility towards one another. For God is opposed to the proud, but God gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon him because he cares for you. हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Amen. This is a verse we have shared many times, और ये वाला जो वचन है कई बार हमने बांटा है, but we require to hear it so many times in our life, every day also. पर ये इसकी जरूरत हमें हमारे जीवन के रोज है, हमें इसकी जरूरत। The greatest need in your life and my life is to be humble. आपके और मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है नम्र होना। That's why Jesus told us in Matthew chapter 11, the last verse, that come and learn from me, for I am humble in heart. मत्ती के 11 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। And why did Jesus say that? Because we tend to get very proud about ourselves. और यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हम हमारे लिए बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। Whenever God gives us good things in our life and gives us victory and over sin and so many good things, sometimes we think that we are somebody great. और कई बार जब प्रभु हमें अच्छी कुछ चीजें देते हैं, किसी पाप के ऊपर जय देते हैं, तो हम सोचते हैं हम कोई बहुत महान है। That is why we have to have a humble attitude before God and before people also. इसलिए हमें नम्र होना है, परमेश्वर के सामने भी और लोगों के सामने भी। That's why it says in Matthew chapter 5, we must start it from a very young age. और मत्ती के 5वें अध्याय में लिखा है, बहुत हमारे जीवन के शुरुआती दिनों से हमें इसको शुरू करना है। That's why we must teach our children always to honor their parents. इसलिए हमारे बच्चों को हमें सिखाना है कि अपने माता पिता का आदर करें। Never talk back rudely to them. कभी भी उनसे बिल्कुल कठोरता से बात ना करें। And even if you happen to do it, always apologize. और अगर कभी भी ऐसा होता है तो माफी मांगे। Because that is one commandment for children, is to honor your father and mother. और ये एक परमेश्वर का आज्ञा है बच्चों के लिए कि अपने माता पिता की आज्ञा को माने। And children don't like to listen to their parents because they want to have their own way. और बच्चे जो है अपने माता पिता को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं। But God tells that even if you don't get what you want, just be thankful for the things your parents have given you and talk respectfully to them. पर प्रभु कहते हैं आपको जो वो चीजें नहीं मिलती है जो आपको चाहिए, फिर भी आपको आदर से बात करनी है और हमेशा उनका धन्यवादी रहना है। And it says all of us also have to clothe ourselves. After that, young people also have to learn this. और इसके बाद जो जवान लोग होते हैं उनको भी ये सब चीजें सीखनी है। As people come into the youth, they begin have a spirit of rebellion. और जब जो लोग होते हैं वो जवान होते हैं तो उनके अंदर विरोध का आत्मा होता है। As they go to school, pass school and go to colleges and go to school and to work, they don't like their bosses at all. और जब वो स्कूल जाते हैं या फिर वो काम पे जाते हैं तो उनको उनका बॉस बिल्कुल पसंद नहीं होता। But God has allowed people to be over them so that they may break them and remain humble. पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हो ताकि प्रभु हमें तोड़े और हम नम्र बने। That's why God, when he does his work with his own children in the youth, he breaks them and allows them to undergo a lot of troubles and problems and people bossing over them. और इसलिए परमेश्वर हमारी जवानी के दिनों में हमें तोड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को हमारे ऊपर रखते हैं ताकि वो हमें तोड़े। Even when we come into the church, God wants young people to have a humble attitude and learn from their elders. और जब हम कलीसिया में भी आते हैं तो परमेश्वर जवान लोगों से चाहते हैं कि वो एक नम्र व्यवहार रखें और उनके एल्डर से सीखें। And this is not only for young people and for children, but also for all of us.
और ये सिर्फ बच्चों के लिए या जवान लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। We have to clothe ourselves with humility, it says. और हमको जो है नम्रता के कपड़े पहनने हैं। So what does it mean to clothe ourselves in humility? और नम्रता को पहन लेने का मतलब क्या होता है? We have to put, as we get up in the morning and go to work, we put on our dress. और जैसे हम सुबह उठते हैं और हमें कहीं जाना है तो हम अपना जो कपड़ा है उसे पहन लेते हैं। And when we go to work, or we go to, suppose we have got a uniform in school also, we know that now we are students, we are employees of this organization. और अगर हम किसी काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म वहां पर पहननी होती है। So that shows that we have to consciously humble ourselves. और ये दिखाता है कि हमें विवेकपूर्ण अपने आप को नम्र करना है। That means to clothe ourselves. I belong to Jesus Christ. Now I am really thankful to God for bringing me into the kingdom of God, and I will behave like that. और नम्रता को पहनने का मतलब अब हम यीशु मसीह के हैं और हम यीशु मसीह की तरह बर्ताव करेंगे। So when we behave, we have to deal with one another in the church or in our home or in the workplace. We have to behave in a humble way. और जब हम कलीसिया में एक दूसरे के साथ रहते हैं या फिर घर में या फिर कहीं पर भी, तो हमें नम्र रहना है। We have to think, I'm going to put the garment of a Christian. I belong to Christ. और हमें ये सोचना है कि हमें परमेश्वर को पहनना है और हम यीशु मसीह के हैं। I belong to Jesus Christ. हम यीशु मसीह के हैं। And I have to behave as Jesus behaved. और जैसा यीशु मसीह ने बर्ताव किया वैसा ही मुझे भी बर्ताव करना है। People may insult me, I may not get things in time. I have to learn to think and to behave as Jesus behaved. हो सकता है लोग मेरा अपमान करें या कोई चीजें मुझे समय पर नहीं मिले, पर मुझे वैसा ही बर्ताव करना है जैसा यीशु मसीह ने किया। I know that I've got so many faults and sins and bad habits in my own life, and I ask God to help me. और मुझे पता है मेरे जीवन में बहुत सारी पाप है और बहुत सारी बुरी बातें हैं। परमेश्वर से मांगना है कि वो मुझे मदद करे। Because when I do this, God's word says God is opposed to the proud but gives his grace to the humble. और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों को पर अनुग्रह करता है। Don't put the clothes of proud people, but put clothes of humble people. और अभिमानियों के कपड़े हमें नहीं अभिमानियों के कपड़े हमें नहीं पहनने हैं, हमें नम्र लोगों के कपड़े पहनने हैं। When we live like Jesus, God is well pleased with us. जब हम यीशु मसीह के समान जीते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं। To whom is the Apostle Paul writing? ये किसको प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं? He's writing to Christians who are following the Lord. जो ये उन्हें लिख रहे हैं जो मसीह है, जो परमेश्वर का पीछा करते हैं। Because all of us are prone to pride. और क्योंकि हम सब जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी हैं। And we sometimes become self-confident and very have our own opinions. और कई बार हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं और खुद के बहुत सारे विचार होते हैं हमारे। Apostle Peter speaks here from his own experience. और यहाँ पर प्रेरित पत्र अपने खुद के अनुभव से बता रहे हैं। So many times he fell and he said, "No, Lord, I will not betray you. I will do this. I will do that." So many things he began to tell. और कई बार वो जो है गिरे, उन्होंने बहुत बार कहा कि प्रभु मैं आपको नहीं पकड़वाऊंगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। Jesus had to call him a devil also once. और एक बार यीशु मसीह ने उन्हें शैतान भी कहा। Because he began to give advice to Jesus as to what is to be done. क्योंकि वो यीशु मसीह को सलाह दे रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। And then he began to self-confidently, everybody will fall away from you. I will never fall away. और फिर उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि सब लोग पीछे हट जाएं पर मैं नहीं हटूंगा। And then God, because of his pride, he fell. और उनके घमंड के कारण वो गिर गए। And when Jesus went to pray, they never prayed. और जब यीशु मसीह गए प्रार्थना करने, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं करी। Proud people do not pray at all. और जो घमंडी लोग होते हैं वो कभी प्रार्थना नहीं करते। The more humble we are, we cry out to God for help. और जितने हम नम्र होंगे, हम परमेश्वर को पुकारेंगे मदद के लिए। And God helps them, and we give thanks to God also. और परमेश्वर फिर हमारी मदद करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। Proud people are never thankful. They always grumble and complain. और जो घमंडी लोग होते हैं कभी भी धन्यवाद नहीं करते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं वो।
There are so many proud people in the church. बहुत सारे घमंडी लोग हैं कलीसिया में, And because of that, God does not help them. God does not give them grace. और इस कारण से परमेश्वर उनकी मदद नहीं करते, उन्हें अनुग्रह नहीं देते। So when God gives us grace, He lifts us up. और जब परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं तो हमें ऊंचा भी उठाते हैं। Verse 6 says, "Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the present time, at the proper time." छठा वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। So God says you have to humble yourself. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आपको अपने आप को नम्र करना है। Many times believers pray, "Lord, make me humble." कई बार लोग विश्वासी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे नम्र बना दे। No, we have to humble ourselves. We have to take ourselves and make ourselves low before God and before people. और हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है, लोगों के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। So, and we have to say to God, "Lord, I'm nothing." और परमेश्वर से हमें कहना है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। Just like Job, when he thought he was a very good man. अय्यूब की तरह, जैसे उसने सोचा कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। God also said he is the best man. और परमेश्वर ने भी कहा सबसे उत्तम पुरुष है ये। And then he can be complain, "Oh, I'm suffering so much problems. Why I'm suffering like this? I wish I had died," and this and that. So many things he began to tell. और उसने भी बहुत सारी चीजें कहना शुरू कर दी, ये सब मुझे क्यों हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ये बहुत सारी बातें। And ultimately, when God spoke to him, he said, "Lord, now I put my face in the dust." और फिर जब परमेश्वर ने उससे बात करी तो उसने कहा, प्रभु मैं अपना मुंह धूल में डालता हूँ। And I repent in ashes. और मैं अपना राख में ले करके मैं अपने आप का पश्चाताप करता हूँ। And I have nothing good to say about myself. और मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे खुद के बारे में अच्छा कहने का। That's how he humbled himself before God. और इस तरीके से उसने अपने आप को दीन किया प्रभु के सामने। And then we have to humble ourselves before people also. और फिर हमें अपने आप को लोगों के सामने भी दीन करना है। You see in the book of Job, अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे, the last chapter, chapter 42. 42 अध्याय। When Job repented, God was very angry with his three friends. और जब अय्यूब ने पश्चाताप किया तो उसके 3 दोस्तों से प्रभु बहुत नाराज थे। And these three friends kept on condemning and accusing Job so much. और ये जो 3 दोस्त थे ये बार-बार उसको बहुत ज्यादा दोष लगा रहे थे। Then he told them, to the three friends, to go and offer a sacrifice of repentance. और फिर उसने कहा कि जाओ और पश्चाताप का बलिदान प्रभु को चढ़ाओ। And verse 8 he says, "Then my servant Job will pray for you." और 8वां वचन में लिखा है कि अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करेगा। And then Job prayed for his three friends. और फिर अय्यूब ने उनके 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना करी। Verse 10 is a very important verse. 10वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था, उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। It is easy to humble ourselves before God because God is a great Almighty God and we are nothing. देखिए, हमें अपने आप को नम्र दीन करना है प्रभु के सामने, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हम कुछ भी नहीं। But to humble ourselves and pray for our own friends who have been very accusing us and hurting us so badly and with all jealousy, that was not very easy. पर अपने आप को नम्र करना और ऐसे लोगों दोस्तों के लिए प्रार्थना करना जो उसे दोष लगा रहे थे, ये आसान बात नहीं थी। But Job humbled himself again and before God and prayed for his friends. पर अय्यूब ने अपने आप को नम्र किया और उसके मित्रों के लिए भी अपने आप को नम्र किया। And then we read that then God blessed him. और फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर उसे आशीषित किया। So when we pray for that people who harass us and do evil to us, then God will definitely bless us. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें बिल्कुल आशीषित करेंगे। This is not as humbling ourselves before God's mighty hand. सॉरी ब्रदर।
This is known as humbling ourselves इसी before को God's कहते हैं mighty hand. Yeah, इसी before को God's कह, mighty hand. इसी को कहते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। See, God allows so many situations in life which we cannot understand at all. देखिए परमेश्वर बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में लेकर आते हैं जिसे हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। Why is this problem coming? Why is this sickness coming? Why is this delay coming? ये क्यों परेशानी मेरे जीवन में आ रही है, क्यों ये बीमारी आ रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है। There is financial loss बहुत सारी आर्थिक परेशानियां and so many problems also I'm facing. Why is that? बहुत सारी समस्या हैं, ये सब क्यों है। But God says, my hand is controlling you. You learn to humble yourself. और प्रभु कहते हैं कि मेरा हाथ तुम्हारे नियंत्रण में है, अपने आप को नम्र करो। So I humble myself, say, Lord, thank you, and I praise you because you are working everything for my good. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करनी है कि परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ भलाई के लिए कर रहे हैं। I don't understand anything, but Lord, I praise you because you are my God and you love me very much. मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर फिर भी प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। You don't give me understanding of everything, but I know that you are working it for my good. आप मुझे हर चीज की समझ नहीं देते हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि हर एक बात मेरे लिए भलाई लेकर आ रही है। I know that your presence is with me, मैं जानता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है and that is enough for me. और ये मेरे लिए काफी है। Yes, God's presence is enough for me. और हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए काफी है। All the other things are extra, and you will give me everything at the right time. और बाकी सारी चीजें हैं, पर आप जो मेरे को चाहिए वो सब कुछ आप मुझे देंगे एक सही समय पर। And that is the greatest exaltation that we can have, that God will exalt us. और ये सबसे महान चीज होगी कि परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा उठाएंगे। Proud people, God pushes them down. और जो घमंडी लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें नीचे दबाते हैं। How does God exalt me? और कैसे प्रभु मुझे ऊंचा उठाएंगे? He always gives me joy and peace and love in my heart. वो हमेशा हमें आनंद देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे हमारे हृदय में। I can praise God in every situation. हमेशा मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ हर परिस्थिति में। I live a heavenly life. मैं एक स्वर्गीय जीवन जीऊंगा। But when God opposes me, पर जब परमेश्वर मेरा विरोध करेंगे, all the love goes away from my heart. सारा प्रेम मेरे जीवन में से चला जाएगा। Instead of love, all hatred, jealousy, everything comes. Anger. और प्यार के बदले गुस्सा, नफरत, जलन आ जाएगी। Instead of joy, all sorts of anger comes inside and hatred comes. और आनंद के बदले सारा गुस्सा और जलन लोगों के प्रति आ जाएगी। And all depression can come. और तनाव आ जाएगा। There are so many believers who are so proud that God allows them to get depressed. और बहुत सारे विश्वासी बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, इसलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं कि वो तनाव में रहें। So that when they're depression, they can cry out to God and then God will encourage them. और ताकि उनके तनाव में वो परमेश्वर को पुकारे और प्रभु उन्हें प्रोत्साहित कर सके। I know myself, so many times I was proud and all sorts of sad thoughts and accusing thoughts began to come to me towards other people, and hatred thoughts began to come to my life. और मैंने देखा है कि जब मेरे जीवन में बहुत घमंडी था, तो मेरे जीवन में बहुत सारे all sorts of sad thoughts and accusing thoughts began to come. दूसरों को दोष लगाने के विचार और बहुत ही दुख वाले विचार मेरे मन में आते थे। This is the atmosphere of hell. और ये जो है नरक का वातावरण है। In the atmosphere of heaven, we have joy and we can praise God and thank God for everything. और स्वर्ग के वातावरण में हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। For proud people, there is no peace. और घमंडी लोगों के मन में कोई भी शांति नहीं होती। There always tension. हमेशा उनके जीवन में चिंता और चिंता होती है। They cannot get proper sleep and all sorts of problems come their life. बहुत अच्छी से नींद उन्हें नहीं आती है और सारी तरह की परेशानियां जीवन में आ जाती है। But for people who love the Lord, who are humble, they have great peace. पर परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग बहुत ही नम्र होते हैं और उनके जीवन में शांति होती है। In Isaiah 57, यशाया 57 अध्याय
It says verse 20 and 21. 20 और 21 वचन। But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, परमेश्वर का यही वचन है। So when believers become wicked in their life, they become proud. Pride is the greatest wickedness. और जो विश्वासी जब घमंडी हो जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा दुष्ट काम होता है उनके जीवन में। All the peace goes away from their life. सारा शांति उनके जीवन में से चला जाता है। And all the bad thoughts begin to come in our life, and they become like the waves of the sea, goes up and down, no rest, always restless. और सारे जो शांति उनके जीवन में से चली जाती है, वो एक समुद्र के समान उनकी लहराते हुए हो जाते हैं, ऊपर नीचे, और सारा शांति उनके जीवन में नहीं रहती। There it says, there is no peace, says my God, for the wicked or for the proud. और यहाँ पे लिखा है कि जो दुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है। And we are all prone to get very proud. और हम सारे जो होते हैं बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। And we can become proud. और हम घमंडी हो सकते हैं। And when we start becoming proud, then the peace goes away. और जब हम घमंडी होना शुरू करते हैं, तो सारी शांति चली जाती है। Immediately we must repent. और हमें तुरंत ही हमें पश्चाताप करना है। Lord, I've become proud. Forgive me, cleanse me. I want to be humble, Lord, before you. I don't want to accuse anybody. I want to humble myself. I'm nothing. Today, if I die, Lord, I will just go away. Lord, help me and forgive me. और जैसे भी हम बहुत घमंडी हो जाते हैं, हम तुरंत ही प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से बोले, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, और अपने आप को नम्र करें। When we allow these proud thoughts to come into our mind, the peace of God and the love of God and the joy of God goes away. अगर ये घमंडी विचार हमारे मन में हम अनुमति देते हैं आने की, तो परमेश्वर का आनंद, शांति और प्रेम हमारे जीवन में से चला जाता है। So 1 Peter chapter 5, we go back. और पहला पत्रस 5वां अध्याय। God, when we humble ourselves, God will exalt us at the proper time. जब अपने आप को दीन बनाएंगे, तो परमेश्वर हमें उचित समय पे बढ़ा देंगे। And what is the proper time? और सही समय क्या है? In Hebrew it says chapter 3, today is the day of salvation. इब्रानियों के 3रे अध्याय में लिखा है कि आज ही उद्धार का दिन है। If I humble myself before God and confess my sins, and like that song we sang, have you been to Jesus for the cleansing power? और अगर हम नम्र कर ले अपने आप को, प्रभु के पास जाओ, जैसा वो गीत कहता है, क्या आप यीशु के पास गए उसके लहू में शुद्ध होने के लिए? Yes, then God will immediately lift us up. और फिर प्रभु हमें तुरंत ही ऊंचा उठाएंगे। He'll forgive our sins and remove the guilt and burden of sin. और परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाएंगे और हमें सारे अपराधों से क्षमा करेंगे। And he'll tell us all your tensions and anxiety, you just put on me, I will take you, I will take care of you because I care for you. और फिर प्रभु हमसे कहेंगे सारी चिंता मुझ पे डाल दे, क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। So there is no point in us getting all anxious and tense about all the things that are going around us. और फिर हमें कोई जरूरत नहीं है कितनी भी चिंताएं हमारे आसपास चल रही हो। Say, Lord, I can't control. You are the ones who control everything. Lord, you please do it according to your will. I'll just submit to you. और फिर हमें कहना है, प्रभु सब कुछ आपके नियंत्रण है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके अधीन होना चाहता हूँ। In every area of our life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। In our home problems, in our office problems, in our church problems, give your problems unto the Lord. आपकी घर की समस्या में, आपके जॉब की समस्या में, कलीसिया की समस्या में, सारी समस्याओं को प्रभु को दे दें। Don't try to control God and control the people. और तो कोशिश भी मत करें कि आप परमेश्वर को नियंत्रण करें या फिर लोगों को नियंत्रण करें। Somebody said, trying to be like God is too much of responsibility, too much of headache. और किसी ने कहा कि परमेश्वर के समान होना बहुत सारा जिम्मेदारी का काम है। Yes, please submit yourself under the mighty hand of God
that God will take care of you because He cares for you. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीनता से रखें ताकि परमेश्वर आपका ध्यान रखें। So thank you, Lord, for that you are caring for every detail of my life. और परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु कि आप मेरे जीवन की हर एक बात का ध्यान रखते हैं। All of us have to learn this lesson, brothers and sisters. हम में से हर एक जन को भाई और बहनों इस पाठ को सीखना है। Proverbs chapter 3 says, verse 7, I think, do not be wise in your own eyes. और नीति वचन में लिखा है कि अपनी आंखों में बुद्धिमान नहीं होना है। So we all like to think that we are special and we know everything. और हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम बहुत सही हैं। And a humble man will say, tell the Lord, Lord, you do according to your plan. Tell me what to do and I will do it. पर जो नम्र व्यक्ति होगा वो कहेगा प्रभु आप आपके प्लान के हिसाब से करें, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। And that's like Job was blessed by God. God also will bless us tremendously. और जैसे प्रभु ने अय्यूब को आशीषित किया, प्रभु हमको भी करेंगे। So my dear brothers and sisters, let us always learn to humble ourselves in every situation. इसलिए भाई और बहनों अपने आप को नम्र बनाने की कोशिश करें हर एक जीवन की परिस्थिति में। Let us learn to repent, ask God forgiveness, ask people forgiveness. और अब पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे और लोगों से भी माफी मांगे। Let us learn to talk less. और कम बात करना सीखें। And let us not interfere in other people's affairs. और दूसरों की बात में दखल अंदाजी ना करें। Say, Lord, I commit this into prayer into your hands. Please do it according to your will. I thank you, Lord, for that. और परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर से बोले प्रभु मैं आपके हाथों में सारी बातों को देता हूँ और आपके अधीन आता हूँ। Then the peace of God will flood into our hearts and God will tell us, I'm taking care of you. और परमेश्वर की शांति फिर हमारे हृदय में आएगी और प्रभु हमसे कहेंगे कि मैं आपका ध्यान रखता हूँ। So let us pray, brothers and sisters, for every problem in our life, commit it unto God. इसलिए भाई और बहनों प्रार्थना करेंगे और हमारे जीवन की हर एक बात को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। Our personal lives, our home life, and our church life, and our office life, everywhere, everything. हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा कलीसिया का जीवन, ऑफिस का जीवन, हर एक बात। ऐसा हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने कुकर भी लगाया था और मैं काम कर रही थी और मैं स्तुति आराधना गा रही थी। अचानक कुकर ऐसे फटा कि पूरा दाल चावल सब पूरे घर में फैल और कांच की जो खिड़की थी वो भी टूट गई और नीचे से सब लोग ऊपर आए कि क्या हो गया करके कुछ के सब लोग आए किधर हुआ ये हादसा करके। सब लोग मेरे घर पे आ गए और मैं उधर ही गैस के चूल्हे के पास ही खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, मैं उधर ही खड़ी थी। और जितने भी लोग आए बोले आपको कुछ भी नहीं हुआ, कैसे हुआ ये? आप तो वही पे खड़ी हो, गैस के पास ही खड़ी हो, आपको कैसे नहीं हुआ? मैं पूरा प्रभु के गाने ही गा रही थी। मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि ये हादसा कैसे हो गया करके, और प्रभु ने मुझे बाल बचा लिया, उसके लिए मैं प्रभु का कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत अद्भुत कार्य किया, चमत्कार किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे बचाया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। इससे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमेशा धन्यवाद की आत्मा में रहेंगे तो प्रभु हमको सब चीज में बचाएंगे। तो धन्यवाद करना हमेशा ही हमारा प्रभु हमको सिखाते हैं, हर चीज में, हर समय में प्रभु के ऊपर मन रखेंगे तो हमारा प्रभु हमको संभालेंगे। कास्टिंग ऑल योर ट्रबल्स ऑन हिम, और प्रभु हमारा ख्याल रखता ही है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद ये सोच के प्रभु का हमारा मन प्रभु के ऊपर रखना है और मुसीबतों के भी प्रभु के ऊपर रखना है। और प्रभु कितना भलाई है, कितना भला है, उसके ऊपर हम मनन करना चाहिए। तो प्रभु हमको सिखा रहा है। सो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कल ब्रदर्स का मीटिंग है 8:45 PM और संडे का मीटिंग है 10 बजे। सबके लिए प्रार्थना में रहो, जैसे हम लोग भी प्रार्थना करें। कैसा भी आपको याद रहे एक दूसरे को प्रार्थना करना, देश के लिए, ब्रदर्स के लिए और अगुआ के लिए भी प्रार्थना करना।
ये हमारा कर्तव्य होता है, तभी हमारे जीवन में अच्छा फल भी आ जाएँगे, ये हमारा सेवा होता है। प्रार्थना